Hello students. In the last video we have completed the lesson. The name of the lesson you will learn about practical geometry, and today onwards we are going to start the next lesson from your syllabus. The name of the lesson is written in front of you here, data handling. Means in our day-to-day life we are discussing about many events, many things, and in those things we are collecting some data, and when we are trying to elaborate that data in a proper way, when we are trying to explain that data in a proper way, then which methods are there, which types of method we are going to use while dividing or while elaborating that data or while dividing that data, that we are going to discuss in this lesson. In the 7th standard you have studied about this lesson, means little means we can say some concepts which are basic one. Those concepts you have discussed in the 7th standard. Which concepts you have discussed in the 7th standard, that I am going to revise first, then we will go to the 8th standard exact concepts. The concept which you have already discussed in the 7th standard, those concepts let me revise first of all, then we will go further. Here I have written some concepts, those you already studied in the 7th standard. Only I am going to revise those concepts. First point from this lesson I am going to start. The point name is written in front of you, that is looking for information. The point name is what? Looking for information. In this last year you have discussed about this first concept. The name of the concept is a pictograph. A pictograph. What is meant by pictograph? How to use that pictograph, and what which type of different types of datas we can elaborate by using this pictograph, that you have already discussed in the 7th standard. Okay, only we will revise it. What is meant by pictograph? Look here, a pictorial representation of a data using symbols. A pictorial representation of data using symbols, that is known as pictograph. Means by using the pictures, or we can say by using the symbols, when we are trying to represent the given data, that time the graph which is used or the pictures which are used, those pictures are called as a pictograph. That is known as what? A pictograph. Okay, then here I have taken one example to revise that pictograph. Look here, I have drawn one figure, one picture, that is this is one test tube. Maybe you have seen in the science lab that test tube is used for different types of testings, means different types of testing in case of solutions, in case of metals, non-metals, in case of different types of minerals, we can say like that. Okay, this test tube is used. Here what I have written, look here, this one test tube is equal to 100 test tubes. Means suppose one figure of test tube is shown or one symbol of test tube is shown, then it represents the 100 test tube. Means one figure is equal to 100, that ratio is taken over here. Okay, what is meant by pictograph, that I am telling. In this picture I am going to show you, the picture is of what? Test tube. This one test tube represents the 100 test tubes. Look here, for that purpose, like that example you have studied in the 7th standard. This is in month of June, July and August. In those 3 months, what is the production of, or we can say what, how many those test tubes are produced, or how many test tubes are manufactured by that chemical company or manufactured by chemical company, that is shown by using the pictograph. Here already it is told that one figure shows the 100 test tube. Now look here, in month of June you will come to know that how many figures are shown? 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. You should not take it directly, means 1, 2, 3 means you should not write is equal to 3, but one figure shows that 100. Means how many hundreds are there? 1, 2, 3. Means how many total hundreds? 3 hundreds are there. Okay, in case of July or in month of July, 1, 2, 3, 4 means 4 into 100 means is equal to what? 400. Like that explanation, ऐसा explanation दिया जाता है उस पिक्टोग्राफ में, यानी कि एक रेशो बनाया जाता है, और बाय यूजिंग दैट रेशो, यानी कि देखो इधर एक फिगर यानी कि 100 टेस्ट ट्यूब हमें कंसिडर करना है, तो मंथ ऑफ जून में ओनली 3 फिगर्स दिखाई है, यानी कि इंस्टेड ऑफ 300 टेस्ट ट्यूब, यानी कि 300 टेस्ट ट्यूब दिखाने के बजाय इधर हमने क्या किया है, एक रेशो बनाया है. एक फिगर क्या रिप्रेजेंट करती है? 100 टेस्ट ट्यूब रिप्रेजेंट करती है. एक फिगर 100 टेस्ट ट्यूब रिप्रेजेंट करती है, तो 3 फिगर्स है तो 300 हो गए, 4 फिगर्स है तो 400 हो गए. ओके,
अब ये अगर तुम अगस्त की तुम फिगर्स देखोगे, अगर जब तुम अगस्त की फिगर्स क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो तुम्हें इधर पता चलेगा, लेकिन इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा है। ओके, इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा है। मैं इधर एक क्वेश्चन मार्क बना देता हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यानी कि इधर कितनी फिगर्स है देखो, 1 2 3 4 5 फिगर्स है, तो इसके सामने सम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस का हमें आंसर इधर देना है। ओके, तो क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं देखो, पहला क्वेश्चन मैं तुम्हें अभी इधर दिखा रहा हूँ। हाउ मेनी टेस्ट ट्यूब्स आर प्रोड्यूस्ड इन मंथ ऑफ जुलाई? हाउ मेनी टेस्ट ट्यूब्स आर प्रोड्यूस्ड इन मंथ ऑफ जुलाई? अभी देखो इधर जुलाई मंथ है, जुलाई मंथ के सामने कितना आंसर लिखा है, 400। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या लिखेंगे, कितने टेस्ट ट्यूब प्रोड्यूस किए हैं मंथ ऑफ जुलाई में, 400 टेस्ट ट्यूब्स। इस टाइप के क्वेश्चंस तुमने 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी किया है। तो ऐसे सिंपल पिक्टोग्राफ यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, वो जो डेटा हमें दिया है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है, वो भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी देखो इधर एक दूसरा क्वेश्चन पूछा है, इन विच मंथ मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट ट्यूब्स आर प्रोड्यूस्ड? इन विच मंथ मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट ट्यूब्स आर प्रोड्यूस्ड, हाउ मच? कौन से मंथ में ज्यादा टेस्ट ट्यूब क्या किए, प्रोड्यूस किए? अब इधर देखो, इधर 3 यानी कि 300, 4 यानी कि 400, इधर देखो 1 2 3 4 5, तो 5 यानी कि कितने हो गए हैं, 500। तो कौन सा मंथ है ये, अगस्त। समझ में आ रहा है? तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, इन विच मंथ मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट ट्यूब्स आर प्रोड्यूस्ड, अगस्त। कौन से मंथ है, इधर देखो ध्यान से दिखा रहा हूं, इधर अगस्त। ओके, अगस्त मंथ में, और कितने टेस्ट ट्यूब है देखो, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 100 दैट इज 500। कितने टेस्ट ट्यूब्स है, 500 टेस्ट ट्यूब्स। तो ऐसे सिंपल वो ग्राफ देखने के बाद हमें क्या करना होता है, सिंपल आंसर लिखना होता है। ये इस टाइप के पिक्टोग्राफ तुमने 7th स्टैंडर्ड में स्टडी किए हैं। समझ में आ रहा है? ये 7th स्टैंडर्ड में तुमने स्टडी किया है। दूसरा एक पॉइंट तुमने 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी किया है, वो भी मैंने इधर ड्रॉ करके दिखाया है, देखो। ओके, क्या है इसका नाम, बार ग्राफ। यानी कि जिस ग्राफ में बार्स दिखाए जाते हैं, और बाय यूजिंग दैट बार्स वो जो इंफॉर्मेशन दी है, वो जो डेटा दिया होता है, वो एक्सप्लेन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं बार ग्राफ। ओके, इधर देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, और वी कैन से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8, ये लिखा है। इधर क्या लिखा है देखो, एकेडमिक ईयर्स, ये एकेडमिक ईयर्स है, और ये क्लास, यानी कि 8th स्टैंडर्ड के इन एकेडमिक ईयर्स में कितने स्टूडेंट्स थे, ये इधर लिखा है। ओके, तो इसके सामने कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, देखो उस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या करना है, इधर देना है। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ? व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ? अभी इधर देखो ध्यान से, कौन सी इंफॉर्मेशन इस बार ग्राफ में दी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 इन एकेडमिक ईयर्स। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8। क्या लिखा है इधर देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8, ओके, इन डिफरेंट एकेडमिक ईयर्स। ये है पहला आंसर। यानी कि ग्राफ देखने के बाद हमें क्या करना होता है, आंसर देना होता है। ये तुमने किया है 7th स्टैंडर्ड में, ओनली मैं रिवीजन कर रहा हूं जो तुमने स्टडी किया है। सेकंड देखो, इन विच ईयर इन द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम। अब इधर देखो, कौन से ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम इंक्रीज हुए हैं। अभी देखो 2003 और 4 में स्टूडेंट्स कितने थे, 100 थे। 4 और 5 में 200 हो गए। 5 और 6 में कितने हो गए देखो, 250 हो गए। 6 और 7 में 300 हो गए। 7 और 8 में 350 हो गए। तो कौन से ईयर में, क्या क्वेश्चन है देखो, इन विच ईयर इन द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, कौन से ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम इंक्रीज हुए हैं। अभी जनरली बच्चे क्या करते हैं मालूम है, अभी देखो इधर बहुत सारे स्टूडेंट है, यानी कि 350 है, तो डायरेक्ट लिख देते 2007 और 8। लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग समझने की कोशिश करो। इन विच ईयर इन द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, कौन से ईयर में इंक्रीज जो है स्टूडेंट की वो मैक्सिमम हुई है। अभी इधर देखो, एज कंपेयर तुम देखोगे तो ध्यान से, मैक्सिमम इंक्रीज हुई है।
क्योंकि दूसरा क्वेश्चन, इसके आगे का भी क्वेश्चन देखो, इन विच ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, कौन से ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम है, तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इधर। लेकिन कौन से स्टूडेंट में इंक्रीज ज़्यादा हुई है, ओके। इंक्रीज हम कैसे पता कर सकते हैं, लास्ट ईयर के स्टूडेंट देखो और अगले ईयर के स्टूडेंट देखो, दोनों में जो डिफरेंस है, इफ यू विल सी दैट डिफरेंस देन यू विल कम टू नो दैट। अभी इधर देखो, अगर ये आंसर हम लिखना चाहते हैं 2007 और 8, तो लास्ट ईयर में स्टूडेंट कितने थे, 300, और नेक्स्ट ईयर में 7 8 में कितने हो गए, 350, तो 50 स्टूडेंट बन गए, बढ़ गए। इधर देखो कितने बढ़ गए, ये 100 थे और उसके बाद डायरेक्ट कितने हो गए, 200। तो इंक्रीज इन द स्टूडेंट्स किस साल में है, 2004 एंड 5, 2004 एंड 5, ओके। तीसरा क्वेश्चन देखो, इन विच ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, कौन से ईयर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम है। अभी हम इधर डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो बड़ा ग्राफ है वही लिखेंगे, 2007 8, ओके। अभी लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ये गलत है क्या सही है। देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005-6 इज ट्वाइस ऑफ 2003-4। देखो क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट 2004-5, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 2005-6, देखो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005-6 इज ट्वाइस दैट ऑफ 2003-4, ओके। 5-6 के कितने स्टूडेंट है, 250, और 3 और 4 के कितने स्टूडेंट्स हैं, 100। ये ट्वाइस है क्या, यस इट इज ट्वाइस। 100 से इधर कितने हुए, 250, तो इधर हम लिखेंगे ट्रू, ओके। समझ में आ गया। ऐसे बार ग्राफ देखने के बाद हमें आंसर लिखने थे, लास्ट ईयर में तुमने ये आंसर लिख के है, ये सिंपल है क्वेश्चन, ओके। ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ, लास्ट ईयर में ऑलरेडी तुमने ये स्टडी किया है, ये मैं रिवीजन में, यानी कि तुम्हें पता हो इसलिए मैं ले रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट है डबल बार ग्राफ। इधर हमने सिंगल बार ग्राफ दिया, देखा देखो इधर ये सिंगल बार ग्राफ्स हैं। अभी इधर कितने हैं, डबल बार ग्राफ्स, यानी एट ए टाइम 2 ग्राफ्स जुड़े हुए होते हैं। इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन दी है, देखो मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स, और ये सब्जेक्ट्स है मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। अभी इसके ऊपर कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, देखो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द डबल बार ग्राफ, कौन सी इंफॉर्मेशन दी है इधर, ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन दी है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखो इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड द मोस्ट, कौन से सब्जेक्ट में मैक्सिमम परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, ध्यान से देखो इधर, ओके। तो तुम्हें पता चलेगा, इधर देखो परफॉर्मेंस लो है, इधर देखो बढ़ गया है, इधर इक्वल है, इधर बड़ा था वो कम हो गया है। तो कौन से सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, मैथ सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, मैथ्स। इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट अ, देखो ध्यान से, इन विच सब्जेक्ट इज द परफॉर्मेंस एट पार, पार यानी कि इक्वल, कौन से सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस इक्वल है, देखो साइंस। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, साइंस। इस टाइप के डेटा हैंडलिंग के टाइप्स तुमने लास्ट ईयर में देखे थे, ये लास्ट ईयर के सारे टाइप्स हैं, मैंने फिर से तुम्हें रिवाइज किया है। इस साल के जो टाइप्स हैं वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में भी स्टडी करेंगे, ओके। रिमेनिंग पॉइंट्स विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।